دوستوں، یہ کہانی صرف ایک درس کی نہیں، یہ اس روحانی تعلیم کی داستان ہے جس میں ایک معمولی انسان نے خود کو اپنے پیر میں پناہ کر دیا اور پھر وہی درجی غوث اعظم کے ہاتھوں بنا ایک مرید، پھر بنا ایک ولی۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی، رلا دے گی اور شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ آپ بھی کسی اللہ کے والی کے مرید ہو تو دیکھیں اپنا فیلڈ شیخن کی منزل آسان نہیں ہوتی۔ چلے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے۔ دوستوں، پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں صبح کی اذان ہواؤں میں گھل کر دلوں کو سکون دیتی تھی، وہیں ایک پرانی گلی کے کونے میں ایک معمولی سی سلائی کی دکان تھی، عثمان ٹیلرز۔ عثمان ایک عام درجی تھا، آنکھوں میں تھکاوٹ اور چہرے پر دنیاوی جھونکوں کی شکست صاف دکھائی دیتی تھی۔ دن بھر وہ لوگوں کے کپڑے سلتا، لیکن اس کی سلائی میں وہ بات نہیں تھی جو دل کو سکون دے۔ کپڑے سینے والا مگر دل سے ٹوٹا ہوا عثمان کی زندگی بس دو چیزوں میں گزرتی تھی، کپڑے اور چائے۔ ہر صبح وہ دکان کھولتے ہی پہلے چائے منگواتا، پھر کینچی، دھاگا اور سوئی کو ترتیب سے رکھتا، لیکن جتنا ترتیب سے اس کی میز ہوتی اتنا ہی بکھرا ہوا اس کا دل تھا۔ لوگ اکثر اس سے مذاق میں کہتے، عثمان بھائی، آپ دوسروں کے کپڑے بہت اچھے سیتے ہیں، لیکن اپنے دل کی پھٹی ہوئی حالت کو کب سیئیں گے؟ وہ بس مسکرا دیتا، ایک ٹوٹی ہوئی مسکان۔ اسے کسی چیز سے لگاؤ نہیں تھا، نماز بھی کبھی کبھار، دل بھی گناہوں سے بوجھل۔ ایک روز کی ملاقات، جب سب کچھ بدل گیا۔ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد ایک اجنبی اس کی دکان پر آیا، لمبا سا کرتا، سر پر ہرے رنگ کی پگڑی، آنکھوں میں نور اور چہرے پر کچھ ایسا اثر کہ خود سورج بھی شرما جائے۔ وہ بولا، سلام ہے درجی، میرے آقا غوث پاک کا ایک مرید ہوں اور میرے شیخ کے لیے ایک خاص کرتا سلوانا ہے، سل دو گے؟ عثمان نے کرتا لیا، لیکن آنکھیں اس اجنبی کے چہرے پر اٹک گئیں۔ غوث سے پاک؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ اجنبی مسکرایا، ہاں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ تمہیں معلوم نہیں؟ سنا ہے لیکن دل سے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اجنبی بولا، کبھی دربار جانا، دل خود بتائے گا کہ سینے والا کون ہے۔ وہ کپڑے نہیں، روحوں کو سیتا ہے۔ اس دن عثمان کے ہاتھ سے کینچی گر گئی، شروع ہوا سوالوں کا طوفان۔ اجنبی چلا گیا، لیکن عثمان کی راتیں بے چین ہو گئیں۔ وہ اپنی سوئی کو دیکھتا اور سوچتا، کیا واقعی کوئی ہے جو انسانوں کی ٹوٹی ہوئی روحوں کو سلتا ہے؟ اس نے اپنے سوالوں کو جواب میں بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ دن بعد وہ دکان بند کرتا ہے، کرایہ بقایا چھوڑتا ہے، رشتہ داروں سے الوداع کہتا ہے اور بغداد کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ سفر آسان نہیں تھا، راستے میں بھوک مری، بخار، بارش اور تنہائی۔ ایک دن ایک چور نے اس کا تھیلا چھین لیا۔ اس میں اس کے سلے ہوئے کپڑے تھے، تھوڑے پیسے اور ایک پرانی سوئی جو اس کے والد نے دی تھی۔ وہ پیڑ کے نیچے بیٹھا آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے اس ولی کی طرف جاؤں تو میری یہ سوئی بچا لے۔ اگلی صبح ایک بچہ اس کی جھونپڑی میں آیا اور کہا، انکل، یہ سوئی مجھے جھاڑی میں ملی، شاید آپ کی ہو۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اس کا پہلا اشارہ تھا غوث پاک کی طرف سے۔ کئی ہفتوں بعد جب وہ بغداد پہنچا تو دربار غوث میں حاضری دی۔ لوگوں کا مجمع، عظمت کا منظر اور روحانی فضا نے اس کے دل کو ہلا دیا۔ وہ رو پڑا، اے شیخ، میں ایک ٹوٹا ہوا انسان ہوں، نہ اعمال ہیں نہ علم، صرف ایک سوئی ہے اور اس پر بسی امید۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے نظر اٹھائی۔ ان کی نظر جب عثمان پر پڑی تو یوں لگا جیسے صدیوں سے کوئی انتظار کر رہا ہو۔ انہوں نے کہا، جسے سلنے کی طاقت چاہیے پہلے خود سینے کا ہنر سیکھنا ہوگا۔ ابھی رکو۔ عثمان ایک عام انسان تھا جو گناہوں سے گھرا تھا، مگر ایک سچی طلب، ایک چھوٹی سی بات اور ایک سوئی اسے غوث پاک کے در تک لے آئی۔ بغداد کے دربار میں حاضری دینے کے بعد عثمان کا دل بھر آیا تھا۔
وہ سوچ رہا تھا کہ اب شاید غوث پاک اسے ترنت مرید بنا لیں گے، مگر روحانی دروازے اتنی آسانی سے نہیں کھلتے۔ وہاں عشق کی آگ میں جلایا جاتا ہے، وہاں فنا کے سمندر میں ڈبایا جاتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایک خاص خادم کو بلایا اور اشارے میں کہا، اسے تہخانے میں لے جاؤ۔ عثمان چونکا نہیں، وہ جانتا تھا کہ کچھ بھی ملے گا، وہ سر جھکا کر قبول کرے گا۔ خادم اسے دربار کے پیچھے بنے ایک اندھیرے تہخانے میں لے گیا۔ وہاں دیواریں پرانی تھیں، دیمک لگی ہوئی لکڑیاں، نہ روشنی نہ ہوا، بس ایک چھوٹی سی چٹائی، ایک ٹوٹا ہوا گھڑا اور ایک مٹی کی کٹوری۔ تمہیں 40 دن یہیں رہنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، نہ سوال نہ شکایت، رات کو جو دیا جائے وہی کھانا، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ حکم تھا، خاموشی کی سزا یا سبق۔ عثمان نے سر جھکا دیا۔ پہلا دن آسان تھا کیونکہ وہ نیا تھا، مگر جیسے جیسے راتیں بڑھیں تہخانہ جیسے سانپ بن گیا۔ اکیلا پن انسان کو اندر سے چھاٹتا ہے، آوازیں نہیں مگر خیال چیختے ہیں۔ عثمان کا دل بار بار کہتا، کیا یہ ذلت ہے؟ کیا شیخ مجھے ناپسند کرتے ہیں؟ مگر پھر اسے اجنبی کی بات یاد آئی، وہ کپڑے نہیں روحوں کو سیتا ہے۔ وہ سمجھ گیا یہ اس کی روح کی سلائی کا وقت ہے۔ 20ویں دن کی رات جب روح کانپی، 20واں دن بہت سخت تھا، نہ روشنی نہ آواز نہ کھانا، وہ بھوکا سو گیا۔ رات کو خواب آیا، وہ ایک ریگستان میں ہے، تیز دھوپ، پھٹے ہوئے کپڑے، اور اس کے ہاتھ میں بس ایک سوئی ہے۔ اس کے سامنے ایک بچہ آتا ہے جس کے سینے میں بڑا سا چھید ہوتا ہے۔ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے، مجھے سی دو، تم ہی کر سکتے ہو۔ وہ سوئی اٹھاتا ہے مگر دھاگا نہیں ملتا۔ پھر غوث پاک کی آواز آتی ہے، جب تک اپنے سینے کو سی نہیں لیتے کسی اور کے سینے کی مرہم بننا حرام ہے۔ عثمان جاگ گیا، بدن پسینے سے بھیگا تھا۔ وہ اب جان چکا تھا یہ فنا کی آگ ہے، یہی سب کا ہے۔ ازمائش اور بھی گہری ہوتی ہے۔ ایک رات کھانا بہت نمکین تھا، اتنا کہ کھانے سے پیٹ میں جلن ہو جائے، مگر حکم تھا جو دیا جائے وہی کھاؤ۔ عثمان نے نمک بھرا نیوالا اٹھایا اور یا شیخ یہ بھی قبول ہے کہہ کر کھا لیا۔ اگلے دن جب وہ تہخانے سے باہر نکلا وضو کرنے تو ایک مرید نے اسے دیکھا اور طنز کسا، تو درجی ہے یا درویش؟ کیا سلنے آیا ہے؟ اپنا دماغ۔ عثمان کچھ نہیں بولا، بس مسکرا دیا۔ غوث پاک اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا، دیکھو وہ درجی اب خاموشی سلنے لگا ہے۔ فنا کا پہلا دھاگا جب زبان بند ہو اور دل بولے، اب عثمان کے چہرے پر نور آنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ اور سانسوں میں صبر۔ اب وہ تہخانے کی اندھیری دیواروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنا سیکھ گیا تھا۔ ایک روز غوث پاک خود تہخانے میں آئے، ان کے ساتھ 2 بزرگ مرید تھے۔ انہوں نے پوچھا، درجی کیسا لگ رہا ہے یہاں؟ عثمان نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ غوث پاک مسکرائے اور فرمایا، خاموشی سب سے بڑی سلائی ہے، تو اب سمجھ گیا کہ روح کو سلا کیسے جاتا ہے۔ ایک رات جب دربار سے آواز آئی، 40ویں رات تھی، وہ چٹائی پر بیٹھا تھا، آنکھیں بند، زبان بند، دل میں صرف ایک نام، یا شیخ اب تو ہی میرا ہے۔ تبھی دربار سے آواز آئی، عثمان! وہ چونکا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تہخانے کا دروازہ کھلا، وہی خادم آیا اور کہا، تمہیں بلایا گیا ہے اوپر ان کے پاس۔ دربار ولی میں دوسری بار حاضری غوث پاک کے سامنے کھڑے ہوتے وقت عثمان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس نے سر جھکا رکھا تھا۔ غوث پاک بولے، اب بتا تو کیا چاہتا ہے؟ عثمان نے بہت دھیمے سے کہا، میں صرف آپ چاہتا ہوں۔ غوث پاک کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فنا کا پہلا قدم تو نے پار کر لیا، اب تو مرید ہے اور یہ سفر اب شروع ہوا ہے۔ اسی وقت دستار بیعت ہوئی غوث پاک نے اپنے ہاتھ عثمان کے سر پر رکھے اور کہا، تو اب عثمان نہیں، عثمان صابر ہے، جس نے تہخانے کی تنہائی میں روشنی پائی، جس نے نمک سے سبق لیا اور خاموشی سے قربت پائی۔
सच्चा मुरीद बनने के लिए सबसे पहले जबान को सिलना पड़ता है, दिल को धोना पड़ता है और रूह को तहखाने में भेजना पड़ता है। जब इंसान सब्र के साथ तहखाने से बाहर आता है तो वो गुलामी से नहीं, वलायत से निकलता है। बगदाद की रूहानी हवाओं में अब उस्मान का नाम धीरे धीरे मशहूर होने लगा था। लोग कहते वो वही दर्जी है जो 40 दिन तक तहखाने में रहा और एक शब्द नहीं बोला। मगर उस्मान अब इन बातों से बेपरवाह था। उसका दिल अब हर सुबह एक ही दुआ करता था, या शेख मुझे मिटा दे मगर अपने करीब कर ले। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की नजर उस्मान पर हर रोज ठहरती। एक दिन उन्होंने अपने दीवान में सब मुरीदों को बुलाया। भीड़ थी, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी। सब सोच रहे थे कि आज कुछ खास होगा। गौस पाक ने इशारा किया, उस्मान साबिर को आगे बुलाओ। उस्मान सामने आया, सर झुका हुआ, दिल में खौफ और शौक दोनों। गौस पाक ने बहुत नरम लहजे में कहा, आज तुझे एक निवाला खाना है जो दिखने में मिट्टी जैसा है। निवाला जो इम्तिहान से भी भारी था। एक खादिम आगे बढ़ा और एक सादी सी मिट्टी की कटोरी उस्मान के सामने रख दी। उसमें सादा बेजायका बदबूदार गीली मिट्टी जैसी चीज थी। भीड़ में सरगोशियां होने लगी। क्या वाकई मिट्टी है? क्या ये दर्जी से खा लेगा? क्या ये बेइज्जती नहीं? उस्मान ने सर उठाया, गौस पाक की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। या शेख, ये निवाला नहीं, आपका हुक्म है। अगर ये झर भी होता तो मैं उसे भी आपका फजल समझकर निगल लेता। उसने वो मिट्टी उठाई, धीरे से मुंह में डाली और चुपचाप निकल गया। भीड़ सन गई, मगर आसमान गवाह लोग हैरान हो गए। किसी ने कहा, ये पागल है, मिट्टी खा रहा है। गौस पाक मुस्कुराए, पागल वो नहीं जो मिट्टी खा जाए, पागल वो हैं जो दुनिया के स्वाद के पीछे रूह बेच देते हैं। उस्मान वहीं बैठ गया। उसका बदन कांपने लगा, मगर उसकी रूह में एक अजीब सुकून था। ख्वाब की दुनिया जब आसमान टूट कर उतरा उस रात, उस्मान गहरी नींद में चला गया। उसे ख्वाब आया वो एक रेगिस्तान में है, भूखा प्यासा। अचानक बादल छा जाते हैं, बारिश होती है। वो हाथ फैलाता है, मगर बारिश की बूंदें मिट्टी बनकर उसके हाथों में गिरती हैं। तभी एक रोशनी उतरती है, गौस पाक की आवाज गूंजती है, जिसे दुनिया की मिट्टी से नफरत न हो वो दिल की पाकीज़गी तक नहीं पहुंचता। तू अब तैयार है अगले सबक के लिए? सुई और सब्र, एक नई तालीम। सुबह जब वह जागा तो गौस पाक ने बुलवाया। उन्होंने एक पुरानी सुई उस्मान को दी और फरमाया, अब से तू लोगों के कपड़े नहीं, उनके सब्र की तहें सिएगा। हर धागा अल्लाह के जिक्र से गुजरेगा। उस्मान ने सुई को माथे से लगाया और कहा, अब ये मेरी तलवार है और सब्र मेरा जिरा है। लोगों की बातें और जवाब जो दिल से आयाब। एक दिन एक मुरीद ने तंज में कहा, उस्मान अब भी सुई चलाते हो? क्या वली बनने का यही रास्ता है? उस्मान ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जो सुई अपने शेख की राह में रोई हो वो तलवार से भी ज्यादा असर रखती है। गौस पाक पास ही खड़े थे। उन्होंने अपने खादिम से कहा, वो अब बातों को भी सीने लगा है। अब उसका दिल तह में जा चुका है, तह की गहराई। जब मिट्टी सोना बनती है, गौस पाक ने उस्मान को एक अलग कोठरी में भेजा। वहां तंगी, सख्ती, भूख और तन्हाई का द्वार फिर से शुरू हुआ। मगर इस बार उस्मान का दिल शुक्र में डूबा था। हर निवाला चाहे सख्त हो, हर लम्हा चाहे मुश्किल, वो बस यही कहता, या शेख जो भेजें वो मेरे लिए रहमत है। इसी को फना फिल शेख कहते हैं, जहां अपनी मर्जी मर जाए और शेख की रजा जिंदा हो जाए। उस रात की करामत, जब मिट्टी सुगंध बनी, 30वीं रात उस्मान को फिर एक ख्वाब आता है। उसने खुद को मस्जिद नबी में देखा। रौजा अक़दस के सामने है, उसकी हथेलियों में वही मिट्टी है। तभी एक आवाज आती है, ये वही मिट्टी है जिसे तूने सब्र से खाया, अब ये तेरी जन्नत की मिट्टी बन गई है। वो जागता है और महसूस करता है,
कि उसके दिल में अब मिट्टी का नहीं, नूर का वजन है। असली भूख पेट की नहीं होती, दिल की होती है। जब इंसान शेख की दी हुई कड़वी मिट्टी को भी शुक्र से खा जाए तो अल्लाह उसके लिए उसी मिट्टी से जन्नत के दरवाजे खोल देता है। उस्मान अब पहले जैसा नहीं रहा था। ना वो पहले जैसा दर्जी था, ना ही आम इंसान। अब उसका हर दिन, हर सांस गौस पाक के इशारे का मुंतजिर रहता था। एक दिन दरबार गौस में फरमाया गया, आज हर मुरीद को एक कपड़ा दिया जाएगा और उसे सीना होगा, मगर उस्मान तुम्हें सुई मिलेगी बिना धागे के। लोग हैरान, बिना धागे के सिलाई? ये तो नामुमकिन है। मगर उस्मान मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली पर सुई रखी, उसकी नोक को चूमा और बोला, अगर शेख का हुक्म है तो हर नामुमकिन भी मुमकिन है। जब आंसू धागा बने, उस्मान कपड़े को पकड़ता है, सुई चलाता है, मगर धागा नहीं, बस हर टांके के साथ एक आंसू टपकता है। उसके आंसू कपड़े में मिलते हैं और जैसे जैसे आंसू गिरते जाते हैं, कपड़ा जुड़ता जाता है। भीड़ सन्न। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, सिलाई हो रही थी सिर्फ आंसुओं से। गौस पाक की आंखें भर आईं। उन्होंने फरमाया, जब मुरीद का सब्र उसके आंसुओं से निकलता है तो वही आंसू अल्लाह के दरबार में धागा बन जाते हैं। सजदा, जो मिट्टी से भी नर्म था, सिलाई पूरी होने के बाद उस्मान वहीं गिर पड़ा। सजदे, उसकी आंखों से निकलते आंसू अब सुई की तरह जमीन में उतर रहे थे। वो बुदबुदा रहा था, या शेख, मेरी सुई अब आपकी राह की मिसाल है। कभी झुकी, कभी चुभी, मगर सीधी रही आपकी तरफ। रात की रूहानी ज़ियारत, जब हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू, उस रात उस्मान को नींद में रोशनी का समुंदर नजर आया। उस समुंदर से एक नूरानी हाथ बाहर आया और आवाज आई, उस्मान। वो कांप गया। सामने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू खड़े थे, चेहरे पर नूर, हाथ में जुल्फ़िकार। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तेरी सुई अब तलवार बन चुकी है। तू सीता है, मगर अब काट भी सकता है नफ्स, हवस और शैतान को। उस्मान ने सर झुका लिया। हजरत अली ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरा सब्र अब तेरी पहचान है। तू शेख का नहीं, अब वलायत का हकदार बन रहा है। ख्वाब से जागना, जैसे जन्नत से लौटना। जब उस्मान सुबह जागा तो उसका पूरा वजूद महक रहा था। उसकी उंगलियों में वो सुई अब सुनहरी हो चुकी थी। वो दौड़ते हुए दरबार पहुंचा। गौस पाक ने उसे देखा, मुस्कुराए और फरमाया, तेरी सुई अब वो नहीं रही जो पहले थी। अब तू लोगों के जिस्म नहीं, उनकी रूह की फटी हुई तहें सिएगा। लोगों की इम्तिहान। और उस्मान का जवाब, एक मुरीद आया और पूछा, क्या सच में आंसू से सिलाई हो सकती है? उस्मान ने बड़ी तवाज़ो से जवाब दिया, जिसने शेख की रहमत देखी हो वो आंसुओं से पूरी दुनिया को जोड़ सकता है। अब वो जहां बैठता वहां लोगों की बातों से पहले उसके आंसू बोलते। गौस पाक का ऐलान, अब ये दर्जी नहीं, मेरी पहचान है। एक रोज गौस पाक ने सब मुरीदों को जमा की। उन्होंने एक छोटी सी पोटली हाथ में ली, उसमें वही सुनहरी सुई थी। उन्होंने फरमाया, आज ये सुई उस्मान की नहीं, रूहानी अमानत है। ये अब उस रास्ते की निशानी है जो तहखाने से शुरू होकर वलायत के दरवाजे तक गया। उस्मान को बुलाया गया। सबके सामने गौस पाक ने फरमाया, ये सुई अब तेरा नहीं, तुझसे आगे आने वाले मुरीदों की राह है। तू अब उनका सीने वाला होगा, जो टूटे हैं, बिखरे हैं, मगर सच्चे हैं। जब मुरीद का आंसू शेख की रजा में गिरता है तो वो दुनिया की हर चीज को सीने की ताकत रखता है। सुई छोटी होती है, मगर उसका असर रूह तक जाता है। दर्जी का नाम अब बगदाद में मशहूर होने लगा था, मगर ये शोहरत दुनियावी नहीं, बल्कि एक मुरीद के सब्र और फना फी शेख की मंजिल तक पहुंचने वाली थी। दर्जी हर रोज की तरह अपने काम में मशगूल था, मगर अब वो सुई धागा चलाते वक्त हर एक टांका या गौस पाक या अल्लाह के जिक्र से लगा था। एक दिन दरबार से फरमान आया, दर्जी को 7 दिन तक कपड़ा नहीं सिलने दिया जाएगा। वो दुकान पर बैठे, मगर सुई को हाथ न लगाए।
दर्जी को समझ नहीं आया कि ये कैसी आजमाइश है। दुकान पर आए ग्राहक चले जाते, कुछ ताने देते। गौस पाक के मुरीद अब काम से जी चुराते हैं क्या? कुछ ने कहा यह सब दिखावा है, मगर दर्जी मुस्कुराकर कहता है जो मेरे शेख का हुक्म है वही मेरे लिए काबिल कबूल है। वो 7 दिन सिर्फ अल्लाह और गौस पाक का जिक्र करता रहा। दुकान में कोई नहीं आया, खाना भी कम मिला, मगर उसका चेहरा और रूह रोशन होती गई। ये उसकी फना फी शेख की पहली झलक थी। शेख के हर हुक्म में खुदा की मर्जी देखन रात का इम्तिहान। चुप्पी का पैगाम। छठे दिन की रात एक आदमी दर्जी की दुकान में आया। उसने कहा मुझे अभी एक कफन सिलवाना है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, पैसे जो मांगो दूंगा। दर्जी की आंखें भर आईं, मगर शेख का हुक्म याद आया, सुई मत उठाना। उसने इज्जत से माफी मांगी, मगर वो आदमी गुस्से से बोला तेरे जैसे लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। वो चला गया। दर्जी ने उसी रात गौस पाक का नाम लेते हुए रोते रोते सजदा किया। गौस पाक की झलक 7वें दिन फज्र की नमाज के बाद दर्जी की दुकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। गौस पाक खुद तशरीफ लाए थे। उनकी आंखों में नूर और दिल में रहमत थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा ए मेरे प्यारे मुरीद, तूने सब्र का लिबास पहना और फनाफी शेखन की राह को समझा। आज से तू मेरा खास वली है। दर्जी की आंखों से आंसू बह निकले। गौस पाक ने उसके सिर पर हाथ रखा और उस लम्हे में दर्जी की रूहानी दुनिया का दरवाजा खुल गया। फनाफी शेख की तालीम उस दिन से दर्जी के दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही, ना शोहरत की, ना दौलत की, ना नाम की। वो कहता था अब मेरा वजूद मेरे शेख में फना है, जो वो करें वही मेरी रजा है। लोग उसके पास आते, उससे दुआ करवाते, मगर वो हर बार कहता मैं कुछ नहीं, मेरा शेख ही सब कुछ है। सालों बीत चुके थे। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के उस सच्चे मुरीद, उस खामोश दर्जी की पूरी जिंदगी अब सिर्फ एक ही मकसद पर टिक चुकी थी, अपने शेख की हर रजा में रजामंद रहना। अब वह दर्जी जिसका नाम बशीरुद्दीन था, उस वक्त भी उसी कोठरी में रहता था जहां पहले पहल शेख ने उसे मुकद्दर की सिलाई में लगाया था। मगर अब उसकी निगाह में सुई और धागा महज धागे नहीं थे, बल्कि हर धागा उसे अल्लाह की जानिब ले जाने वाला एक सबक लगता था। बगदाद की हवा में कुछ खास नमी थी। अजान फज्र की सदा पूरे शहर में गूंज रही थी। उसी वक्त दरबार में हजरत गौसे पाक अपने मुरीदों के दरमियान तशरीफ लाए। उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा आज एक रूहानी इम्तिहान का आखिरी मरहला मुकम्मल हुआ है। मुरीदीन ने ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखा। गौसे पाक ने आगे कहा जिसने सैकड़ों तकलीफें सही, जिस पर दुनिया हंसी, मगर जिसने एक लफ्ज भी शिकायत का न निकाला, वो अब फनाफी शेख की हकीकी मिसाल बन चुका है। उस रोज बशीरुद्दीन को बुलाया गया। वो दरबार में दाखिल हुआ तो किसी को यकीन नहीं हुआ। वही दर्जी जिसकी कमर झुकी रहती थी, चेहरा खामोश रहता था, आज उसके चेहरे पर ऐसा नूर था जैसे चांदनी में कोई सूरज छुपा हो। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे गले लगाया। बशीर, आज तूने वाकई अपनी पहचान पा ली है। तू अब मुरीद नहीं, एक मुकद्दस वली है, बशीर अल वली। फिर शेख ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर मारी और कहा सुनो मुरीदों, बशीर अब तुम सबका उस्ताद है, क्योंकि इसने सब्र, तवक्कुल और फना फिल शेख का वो रास्ता तय किया है जो बहुत कम लोग तय कर पाते हैं। शेख ने आगे कहा फना फिल शेख का मतलब सिर्फ यह नहीं कि तू अपने शेख से मोहब्बत करे, इसका मतलब है तू अपने शेख की मर्जी में इतना डूब जाए कि तेरी मर्जी मिट जाए और तुझे सिर्फ शेख की बातें ही जिंदा रखें। आखिरी इम्तिहान की हिकमत एक मुरिद ने हिम्मत करके पूछा या शेख, आपने बशीर को इतने सालों तक सजा क्यों दी? भूखा रखा, नजरअंदाज किया, दूसरों से हंसी कराई? गौस पाक ने जवाब दिया मैंने उसे जलील नहीं किया,
मैंने उसकी रूह को पुख्ता किया, मैंने उसके नफ्स को जंजीरों में जकड़ा ताकि उसका दिल सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कने लगे। जो शख्स दुनिया की जिल्लतें बर्दाश्त करता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाजिल करता है। उसी दिन बशीरुद्दीन ने आंखों में आंसू लिए शेख के कदमों में गिरकर कहा, या शेख, अगर मेरी जान से आपकी खिदमत और बढ़ती है तो मेरी जिंदगी की आखिरी सांस भी आपके नाम हो जाए। गौस पाक ने मुस्कुराते हुए कहा, बशीर, तू अब खुद एक दरगाह है जहां लोग आएंगे, बैठेंगे, सब्र सीखेंगे और रूहानी सुकून पाएंगे। मगर याद रख, अब तू मेरी तरह दूसरों के इम्तिहान भी लेगा। वक्त गुजरता रहा। बशीरुद्दीन ने कभी अपनी पहचान का दावा नहीं किया, न ही कभी किसी को बताया कि वो गौस पाक का वली बना है। बस एक कोने में बैठकर बच्चों को इस्लामी तालीम देता, सिलाई करता और दुआ करता, या अल्लाह मुझे मेरे शेख की तालीम पर कायम रख। बशीर का वसीयत आखिरकार जब उसकी उम्र 70 साल की हो गई तो एक दिन उसने अपने कुछ खास शागिर्दों को बुलाकर वसीयत की, मेरी कब्र किसी दरगाह के करीब न बनाना, मुझे उसी कोठरी में दफन करना जहां मैंने पहली बार सुई पकड़ी थी। वही मेरी असल मक्का है, वही मेरा काबा। जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं तो उसने आंखें बंद करके सिर्फ एक बात कही, अल्लाह, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरे शेख के वास्ते किया। अब तू अपने वली को अपने पास बुला ले। और फिर एक नूर उठा, ऐसा नूर जो आसमान तक चला गया। बशीर की कहानी सिर्फ एक दर्जी की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस शख्स की कहानी है जो अपने शेख की तालीम, रजा और रहमत में पिघल कर खुद को मिटा देता है। फना फिल शेखों का मतलब है खुद को मिटा देना, ताकि तेरे अंदर सिर्फ शेख की रूहानी खुशबू रह जाए। खत्म हुआ दर्जी बशीरुद्दीन का सफर, मगर उसका सबक हमेशा जिंदा रहेगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद दर्जी की पूरी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मुरीद वही है जो हर सख्ती और इम्तिहान में सब्र से काम ले। चाहे पेट में आग लगे, तन पर कपड़ा ना हो, फिर भी अगर दिल में अपने शेख की रजा हो तो हर तकलीफ रहमत बन जाती है। फना फई शेख की तालीम, मुरीद का सबसे ऊंचा मकाम है फना फई शेख, यानी अपनी हस्ती को मिटा देना और शेख की रजा में खो जाना। दर्जी ने जब अपने शेख की हर बात पर सर झुकाया, अपनी सोच और चाहत को छोड़कर सिर्फ शेख की रजा को माना, तभी वह वली बन गया।